Hello dear students, welcome in the world of Noisy. Today we are going to understand an anatomy of ear. But before going to understand the anatomy of ear, I would like to ask a very simple question, that is, how are you listening to the sound or music? Can you please think? You may think that I'm just making some noise or music just make some noise and you're listening with your ear. But that is not truly correct. So please listen carefully. We have air around us, and air is a form of matter, right? So matter is made of a small number of particles. So when I'm speaking or when you're listening to any music, they starts vibrating these particles, these air particles, and these vibrating air particles produce a sound wave. And when this sound wave goes near to your ear, and when it enters inside your ear, you just understand the sound or you just listen the sound. So in this lecture, we will understand different parts of ear along with their function. We'll understand how ear actually works. Clear? Along with this, we will also discuss previous year question of NEET and JPAT examination. So please be with us and understand this topic in one shot. Let's discuss in detail. This is complete structure of ear. It includes all the parts of ear. Ear is divided into three parts, that is external ear, middle ear and internal ear. External ear includes ear pinna, ear canal and eardrum. Middle ear includes ear ossicle and eustachian tube. And internal ear have vestibular part and cochlear part. Students, these are various parts of ear. We will understand each part in detail. Clear? So here we can divide this structure into the three parts, that is external ear, middle ear and internal ear. So in the external ear, this complete part is called as ear pinna. This tube-like structure is called as external auditory meatus, and this drum-like structure, a tight structure, is called as eardrum or tympanic membrane. In the middle ear, you can see the malleus, incus and stapes. These three bones are present. Along with this, there is one tube-like structure called as eustachian tube. In the internal ear, you can see this structure. This complete structure is called as internal ear, right? So we will understand each and everything in detail. Let's discuss the functions of ear. Ear is having two functions. Number one is to maintain the body balance or equilibrium of the body. And number two is hearing. Statoreceptors are involved in the body balancing and phonoreceptors are involved in hearing. But out of these two functions, which is the main function of ear? We have two options, that is hearing and maintaining the body balance. So the correct answer is maintaining the body balance. So please remember, hearing is not a main primary function of ear. Clear? Apart from this, ear is also called as statoacoustic organ. Stato meaning maintaining the balance and acoustic means hearing. So the term was likely coined by combining the Greek roots, that is stato and acoustic, to describe the organ's dual function. So statoacoustic organ simply means that ear has two functions, that is the balancing and hearing. Dear friends, be with us. Now let's understand external ear in great detail. Dear students, let's start with the external ear. In this part, we will understand ear pinna, ear canal, and at last we will understand eardrum. So be with us and understand very carefully. Let's discuss ear pinna, also called as auricle. It is characteristic feature of all mammals. So here you can see all mammalian species have ear pinna. Next point is, these ear pinnas may be small or may be large in size. So here you can see elephant, dog and humans have different size of ear pinna. Small hairs are present on the ear pinna. Next point is, it is flexible structure. It is made up of
yellow elastic cartilage. Many mammals can move their ear pinna in the direction of sound. So in this video, you can see the dogs can move their ear pinna according to the direction of sound. But students, humans, आप लोग ear pinnas को move कर सकते हो? नहीं. So here you can see in humans it is immobile because auricular muscle of pinna are vestigial. So what is the function of ear pinna? It collects sound vibration in the ear which produce sound. So here you can see जो भी आप म्यूजिक सुनते हो उसके वाइब्रेशंस, अलग अलग साउंड्स के वाइब्रेशंस ये ईयर पिन्ना क्या करेगा स्टूडेंट्स? इंटरनल ईयर तक डालने की कोशिश करेगा. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज ईयर कैनल, also called as external auditory meatus. Length of this ear canal is 2.5 cm. It extends from pinna to tympanic membrane. So यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, as you know, this is ear pinna, this is ear pinna, and this is tympanic membrane. So ear pinna से लेके tympanic membrane तक जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे आप बोलोगे ईयर कैनल. Clear? It is less developed in reptiles and birds, but it is more developed in mammals. It contains following glands, that is ceruminous glands and sebaceous gland, and they produce a ear wax or cerumen, which is a oily substance. And what is the function of this substance? To protect and lubricate the eardrum and ear canal. Clear? Let's discuss tympanic membrane or eardrum. It is stretched, thin and obliquely placed membrane. So ये बहुत ही stretched है, thin है and obliquely placed structure है. Please remember this. This is an image of eardrum. It is covered with skin outside and with mucus inside. So यहाँ पे स्टूडेंट ये अगर आपका eardrum है, so outside से यहाँ पे क्या present है? Skin. And from the inner side यहाँ पे क्या present है स्टूडेंट? Mucus. Clear? It connects external ear with middle ear. It vibrates in response to sound waves and channelize those vibrations to middle ear. So यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? This is your external ear, this is your middle ear and this is your internal ear. So अगर हम फोकस करेंगे external ear and middle ear, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं ईयर ड्रम. तो ये क्या है स्टूडेंट? ऑब्लिकली प्लेस्ड है, स्ट्रेच्ड है एंड बहुत ही थीन मेम्ब्रेन है. सो जो भी साउंड वेव्स बाहर से अंदर आएंगे दे विल स्ट्राइक हियर, इसे हीट करेंगे. और आपने देखा ही रहेगा स्टूडेंट्स, जो भी म्यूजिक्स में जो भी आप म्यूजिक सुनते हो वहाँ पे ड्रम प्रेजेंट है, जैसे हम उसे हीट करते हैं वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड. सो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स. जो भी साउंड वेव्स आते हैं जब ये इसे हीट करेंगे यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे एंड ये वाइब्रेशंस फिर ये ईयर ड्रम से किस में जाएंगे? मिडल ईयर में. क्लियर? This eardrum can be viewed by using instrument that is otoscope. So when student you visit the hospital, जब भी आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपके ईयर में कोई पेन है तो ईयर ड्रम को देखने के लिए वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है क्या, डॉक्टर हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज ओटोस्कोप. यहाँ पे आप देख सकते हो. स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ईयर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सटर्नल ईयर प्रॉपरली. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. Okay, now let's jump into next part, that is middle ear. Dear students, let's understand the middle ear. Middle ear is consist of air-filled cavity, also called as the tympanic cavity. It consists of ear ossicle and eustachian tube. So we will understand each part in detail one by one. Okay? Ear ossicles. Each ear contains 3 ear ossicles, means we have 6 ear ossicle in total. Name of this ear ossicle are M for malleus, I for incus and S for stapes. So here this is very good hint to remember the ear ossicle, that is Miss. Let's discuss all 3 ear ossicle in detail. This is malleus, this is incus and this is stapes. Malleus is hammer shaped, incus is anvil shaped, stapes is stirrup shaped. Malleus is situated towards the outer ear. Incus is situated between the malleus and stapes is connected to the internal ear through the oval window.
that we will see in detail in few minutes. Malleus is the largest of three bones. ये तीनों बोन्स में सबसे लार्ज अगर कोई बोन रहेगा दैट इज मैलियस. इनकस का साइज जो है स्टूडेंट मैलियस एंड स्टेपिस के बीच में रहेगा एंड स्टेपिस इन तीनों में सबसे छोटा बोन रहेगा. इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत बार क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि ईयर ऑसिकल आर प्रेजेंट इन विच कैविटी. So please note that as we have discussed, these ear ossicle are present in tympanic cavity, which is also called as an ear-filled cavity. I hope this is very much clear to you. They are attached to one another in chair-like fashion. So here you can see, first one is the malleus, second one is the incus, and third one is the stapes. So here you can clearly see they are attached to each other in a chain-like fashion. Let's discuss joints. Between malleus and incus, malleus and incus के बीच में कौन सा joint present है student? Please remember it is called as synovial hinge joint. Between incus and stapes, the joint is called as ball and socket joint. So इस पे question आता है student. Please remember this. What are the functions of ear ossicles? The function is to amplify and transmit the sound vibrations from the eardrum to inner ear. मतलब यहाँ पे students जो भी बाहर से sound waves आ रहे हैं उनको यह क्या करते हैं स्टूडेंट, उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, उनको एम्पलीफाई करते हैं. क्लियर? एंड हाउ दे वर्क्स. सो हियर यू कैन सी द नेक्स्ट इमेज. इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट एक फिंगर है और इस फिंगर के ऊपर 3 बोन्स रखे हुए हैं. ये 3 बोन्स कुछ और नहीं बल्कि दीज आर द ईयर ऑसिकल्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेपिस का साइज जो कि अपने पूरे बॉडी में सबसे छोटा बोन है. I hope this is very much clear to you. Next part is eustachian tube, also called as auditory tube. Middle ear is connected to nasopharynx cavity through a canal called as eustachian tube or auditory tube. अब इस auditory tube का function क्या है? It helps in equalizing the pressure on both sides of eardrum. It normally remains closed but opens during swallowing, chewing, yawning, sneezing, coughing and changes in the altitude. So यहाँ पे आप देख सकते हो students. This is eardrum. These are the ear ossicles, and this tube-like structure is called as eustachian tube. Students, this is your eardrum. Eardrum के दोनों साइड में सेम प्रेशर होना चाहिए. अगर eardrum के कोई भी साइड्स में अगर प्रेशर कम ज़्यादा हो गया, अगर मिडल ईयर में प्रेशर बढ़ गया और बाहर से ज़्यादा साउंड वेव आ रहा है तो बाहर अगर प्रेशर बढ़ गया तो ये ईयर ड्रम जो है इसे हार्म हो सकता है. क्लियर? दस eustachian tube equalizes the pressure on both side of eardrum. Is it clear to you? अरे हाया ना? Okay. If the auditory tube becomes blocked or fails to open properly, pressure may build up in the middle ear causing discomfort, pain or even hearing loss. This can occur in conditions such as cold, allergies, sinus infections or changes in the altitude during air travel. Dysfunction of auditory tube or eustachian tube may require treatment such as medication, a nasal spray or surgical intervention depending on the underlying cause. सो अगर eustachian ट्यूब को कोई भी इन्फेक्शन और कुछ भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट तो आपको उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर करवाना पड़ेगा. क्लियर? सो लेट्स विजुअलाइज द eustachian ट्यूब. इन दिस डायग्राम यू कैन सी ऑन द बोथ साइड eustachian ट्यूब और auditory tube is present. This is nasal cavity. This is also nasal cavity. This is the middle ear. This is the middle ear, and here you can see it is connecting the middle ear to the nasal cavity. Here also it is connecting middle ear to the nasal cavity. I hope this is very much clear to you. Middle ear is connected to the internal ear by 2 apertures. Number 1 is the oval window and number 2 is the round window. Oval window is also called as fenestra ovalis and round window is also called as fenestra rotunda. So here you can see, if we zoom this image of the middle ear, you can see here
As you can see, this is tympanic membrane, that is eardrum. eardrum को कौन अटैच है स्टूडेंट? दैट इज मैलियस. मैलियस को इमीडिएटली कौन अटैच्ड है? इंकस. एंड देन इंकस को कौन अटैच्ड है? दैट is stapes. Now, in front of stapes, you can see this window. It is a oval window, and उसके नीचे एक window है student, that is called as the round window. And इसके आगे ये जो भी part है, it is a part of internal ear. This part is called as the middle ear, और इसके बाहर जो भी part है, that is called as external ear. So यहाँ पे आप देख सकते हो students, जो stapes है ये directly attached है oval window से. कोई भी ईयर ऑसिकल राउंड विंडो से डायरेक्टली अटैच नहीं है. सो क्वेश्चन अगर आपको आया स्टेपीज इज अटैच टू विच विंडो, द आंसर विल बी ओवल विंडो. क्लियर? सो नोट, स्टेपीज इज कनेक्टेड टू द ओवल विंडो, दैट इज फेनेस्ट्रा ओवलिस, एंड नॉट द राउंड विंडो. प्लीज रिमेंबर दिस. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मिडल ईयर very properly. Just I would like to add one more important point that सबसे external part जो है ईयर का, that is called as the external ear. Middle part is called as the middle ear, and जो internal part है उसको हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स? internal ear. अब आप इतना ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जो मिडल ईयर है, जस्ट वी हैव सीन इट कंसिस्ट ऑफ एयर. उसके अंदर क्या रहेगा? एयर. जो एक्सटर्नल पार्ट है उसके अंदर भी क्या रहेगा? एयर. बट जो हमारा इंटरनल ईयर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर लिक्विड होता है, राइट? So it is liquid filled cavity. Middle ear is the air filled cavity. तो हमारा जो ईयर है उसे अगर साउंड को डिटेक्ट करना है तो बाहर से वाइब्रेशंस अंदर जाना चाहिए. एंड साउंड को डिटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है? इंटरनल ईयर में, जो कि हम थोड़ी देर में अच्छे से देखेंगे. बट इंटरनल ईयर जो है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है. तो फ्लूइड को कवर किसने किया है? बोनी पार्ट में, राइट? मतलब यहाँ पे एक बोनी पोर्शन है इंटरनल ईयर में, एंड उसके अंदर हमने फ्लूइड भरा हुआ है. तो उस फ्लूइड के अंदर हमारा जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, जो साउंड को डिटेक्ट करेगा. तो अगर ये एक्सटर्नल ईयर से जो वाइब्रेशंस आ रहा है एक्सटर्नल ईयर से लेके मिडल ईयर में, एंड उसे अगर इंटरनल ईयर में जाना है तो ये बाहर जो बोनी पार्ट है इसमें से तो वो इजीली जा नहीं सकता. तो यहाँ पे उसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो होल बनाया है इस बोन में. एक होल को हमने नाम दिया राउंड विंडो और दूसरे होल को नाम दिया ओवल विंडो, राइट? सो दिस वाज जस्ट regarding some important point about the round and oval window, जो आपको अच्छे से समझना है. थोड़ी देर के बाद आपको और क्लियरली इसके बारे में आइडिया आ जाएगा. क्लियर? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. Dear students, let's understand the parts of internal ear from Amit Manal. Internal ear is also called as the labyrinth. It consists of air-filled cavity, also called as the fluid-filled cavity. It contains vestibular apparatus and the cochlea. Vestibular apparatus consists of semicircular canals plus vestibule. Vestibular part is involved in the balancing of the body, and the cochlear part is involved in the hearing, right? So you have to understand it very carefully, okay? Now let's decode the internal ear. As we have discussed, internal ear is also called as the labyrinth. So here, internal ear consists of two parts, that is, first one is the bony labyrinth and second one is the membranous labyrinth. अब ये जो बोनी लैब्रिंथ है स्टूडेंट, ये हार्ड पार्ट होता है, राइट? एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है इट इज सॉफ्ट पार्ट, वेरी सॉफ्ट होता है ये. क्लियर? सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बोनी लैब्रिंथ विच इज ए हार्ड पार्ट. और जब आप इस हार्ड पार्ट को, इस बोनी लैब्रिंथ को ब्रेक करोगे, इसे तोड़ दोगे, एंड इसे तोड़ के इसके अंदर जब आप देखोगे तब आपको इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हमने बोला मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ किसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट? इनसाइड द बोनी लैब्रिंथ, right? So what we have studied, internal ear is called as the labyrinth. We have two parts, that is the bony labyrinth and the membranous labyrinth. Outermost is the bony labyrinth, और इसे bony labyrinth को break करके जब आप अंदर इसके अंदर देखोगे तो आपको कौन सा पार्ट मिलेगा? सॉफ्ट पार्ट, that is membranous labyrinth. So membranous labyrinth is present inside the bony labyrinth. I think it is very very clear with you. Let's go ahead. Students, आपके मन में एक सवाल आया होगा, bony labyrinth हार्ड पार्ट है and membranous labyrinth सॉफ्ट पार्ट है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन हो सकता है? डेफिनेटली. सो टू अवॉइड दिस फ्रिक्शन हमने बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है. सो बोनी लैब्रिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स? पेरिलिम्फ. नाउ आउटसाइड यू हैव बोनी लैब्रिंथ
इनसाइड यू हैव मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, बिटवीन दिस टू पेरिलिम्फ इज प्रेजेंट। अब होगा क्या स्टूडेंट, फ्रिक्शन तो अवॉइड हो गया, बट पेरिलिम्फ क्या करेगा, अंदर जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा एज इट इज अ लिक्विड। तो इसके वजह से मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कोलैप्स भी हो सकता है और उसका शेप भी चेंज हो सकता है। सो टू अवॉइड दैट, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर भी हमने एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे बोला जाता है एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ क्या करेगा, इट विल अवॉइड द कोलैप्स। तो इसका एक्चुअल अरेंजमेंट कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, दिस इज द एक्चुअल ज्योमेट्री। सो यहाँ पे बाहर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, दिस इज द बोनी लैब्रिंथ। अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, दिस इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ विच इज अ सॉफ्ट पार्ट। सो यहाँ पे दिस इज द हार्ड पार्ट, बाहर वाला, दिस इज द सॉफ्ट पार्ट। सो सॉफ्ट एंड हार्ड के बीच में फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया है स्टूडेंट्स, दैट इज द पेरिलिम्फ। सो दिस इज द पेरिलिम्फ जो क्या करेगा, हार्ड एंड सॉफ्ट का फ्रिक्शन अवॉइड करेगा। बट ये पेरिलिम्फ क्या करेगा स्टूडेंट, अब ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इट कैन कोलैप्स। टू अवॉइड दैट कोलैप्स हमने इसके अंदर एक फ्लूइड फिल किया, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोलिम्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लूइड है जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर है, राइट। तो ये जो कोलैप्स है, जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का, ये मेंटेन रखेगा, दैट इज एंडोलिम्फ। क्लियर। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैब्रिंथ। इसके अंदर दो पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट इज द बोनी लैब्रिंथ विच इज द हार्डेस्ट पार्ट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, द सॉफ्ट पार्ट, दैट इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, राइट। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ एंड बोनी लैब्रिंथ दोनों के बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज द पेरिलिम्फ। एंड इनसाइड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एंडोलिम्फ। क्लियर, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर, लेट्स गो अहेड। रिलेशनशिप ऑफ पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ टू द लैब्रिंथ। सो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, दिस इज द इंटरनल ईयर। जैसे आप इसका सेक्शन लोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर बोनी लैब्रिंथ प्रेजेंट है, उसके अंदर ग्रीन कलर का जितना भी फ्लूइड है दैट इज द पेरिलिम्फ, राइट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, एंड उसके अंदर ब्लू कलर का जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोलिम्फ। नाउ एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इंटरनल ईयर इज लोकेटेड इन विच कैविटी। सो ये जो बाहर का जो बोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस बोन इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द बोन। एंड इसके अंदर जो कैविटी है स्टूडेंट, इस कैविटी को बोला जाता है पिट्रस कैविटी। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इंटरनल ईयर इज लोकेटेड इन विच पार्ट, सो द आंसर विल बी पिट्रस कैविटी। क्लियर। सो लेट्स डिकोड द इंटरनल ईयर इन मोर डिटेल. So this upper part is called as the semicircular canals. So these are the semicircular canals 1, 2 and 3. This middle part, as you can see, is called as the vestibule, and this lower part, a snail like structure, is called as the cochlea. So this is a complete structure of internal ear, right? This is internal ear. If we break the bony labyrinth and take out the membranous part, that is the soft part outside, so here you can see the membranous labyrinth. So here the point of conclusion is membranous labyrinth lies within the bony labyrinth. So this is a membranous labyrinth. Let's focus on the parts of the membranous labyrinth. This upper part is called as the semicircular canals. This middle part is called as the utricle. This small parts below the utricle is called as the saccule. The lower part is called as the cochlear duct. The saccule and utricle combinedly called as vestibule, right? The upper part containing semicircular canal and vestibule, that is utricle and saccule, ये सभी मिला के इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स vestibular apparatus. So you can easily understand that vestibular apparatus is made up of semicircular canal plus vestibule, and vestibule is again made up of utricle and saccule. So this is all about the vestibular apparatus. Below this, cochlear duct is present. So this is called as the cochlea. Sometimes cochlear duct is also called as the cochlea. So don't confuse. Now let's understand the function of vestibular apparatus and the cochlea. Function of vestibular apparatus is to balance the body, and function of this cochlear part is hearing. Clear? So I hope this is very much clear. Dear students, I know this is slightly confusing part. So मैं आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ. तो अब तक हमने इंटरनल ईयर में क्या देखा है स्टूडेंट्स? इंटरनल ईयर is called as the labyrinth. It consists of two parts. One is the hard part and one is the soft part. So hard part is the outermost part, which is made up of a bony labyrinth, and उसके अंदर क्या present है student? Soft part, that is the membranous labyrinth. अब इस जो bony labyrinth है student, and इसके अंदर जो soft part present है membranous labyrinth, इन दोनों के बीच में कौन सा fluid present है? That is the perilymph. तो आपको जब भी आपको कोई पूछेगा bony labyrinth के अंदर कौन सा fluid present है, तो आपका आंसर 100% क्या होना चाहिए student? That is the perilymph. और perilymph का function क्या है? To avoid the friction, right?
अब स्टूडेंट, ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है, जो अंदर का सॉफ्ट पार्ट है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? दैट इज द एंडोलिम। मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं स्टूडेंट, बोनी लैब्रिन्थ, पेरिलिम, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, एंडोलिम। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है, राइट? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है, दैट इज ये बाहर का क्या है? बोनी लैब्रिन्थ, इसके अंदर ये क्या है? मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ जो है, इसके अलग अलग पार्ट्स आपने देखे, दैट इज द सेमी सर्कुलर कैनल, यूट्रिकुलस, सेक्यूलस, राइट, एंड नीचे क्या है? कॉक्लियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज जो सेमी सर्कुलर कैनल है उसके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, देयर आर 3 नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टा एम्पुलस। किसमें होता है? सेमी सर्कुलर कैनल में। देन जो यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स है, उसके अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्यूली। एक मैक्यूला यूट्रिकल में होता है, एक मैक्यूला सैक्यूल्स में होता है। एंड जो लास्ट का कॉक्लिया है, उसके अंदर कौन सा सेंसरी स्ट्रक्चर है? दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टा। क्लियर? सो ये इतना जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट very properly. Clear? We have taken both the structures. This is the bony labyrinth. And इसे जब हम ब्रेक करेंगे तब हमें जाके क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। अब बोनी लैब्रिन्थ के जो सेमी सर्कुलर कैनल्स है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? दिस सेमी सर्कुलर कैनल्स और सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ये पार्ट किसके अंदर प्रेजेंट होगा? इस वाले पार्ट के अंदर, राइट? देन ये जो पार्ट है स्टूडेंट, यूट्रिकल प्लस सैक्यूल ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, ये जो पार्ट है ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? ये प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में, दैट इज द वेस्टिब्यूल पार्ट। मतलब इसके अंदर यूट्रिकल प्लस आपको सैक्यूल्स दिखाई देगा। क्लियर? एंड ये जो लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज द कॉक्लियर डक्ट इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, दैट इज द कॉक्लिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो हियर यू कैन सी जो भी बोनी लैब्रिन्थ है, जो हमने अभी देखा, दिस बोनी लैब्रिन्थ, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है? सेमी सर्कुलर कैनल, सेकंड इज द वेस्टिब्यूल एंड थर्ड वन इज द कॉक्लिया। द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ प्रेजेंट इनसाइड द बोनी लैब्रिन्थ। इस बोनी लैब्रिन्थ के अंदर इसे तोड़ोगे तो कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। अब इसके पार्ट्स देखो, इसके सेमी सर्कुलर कैनल में क्या प्रेजेंट है? सेमी सर्कुलर डक्ट्स। देन इसका जो वेस्टिबुल पार्ट है बोनी लैब्रिन्थ का, इसके अंदर 2 और पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज यूट्रिकल एंड सैक्यूल, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। देन कॉक्लिया जो है, जो पार्ट है बोनी लैब्रिन्थ का, इसके अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? दैट इज द कॉक्लियर डक्ट। क्लियर? अब ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स है, ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स है, इस डक्ट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंसरी, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टा एम्पुलारिस। ये जो यूट्रिकल एंड सैक्यूल है, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंसरी, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्यूली। एंड ये जो कॉक्लियर डक्ट है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टा। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड डियर स्टूडेंट्स। सो दिस 3 सेंसरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। अब ये जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है, इसका फंक्शन होता है स्टूडेंट्स डायनेमिक मूवमेंट ऑफ बैलेंसिंग। मतलब जब आप मूवमेंट कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, घूम रहे हो, उस टाइम में आपके बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? क्रिस्टा एम्पुलरिस और सेमी सर्कुलर डक्ट्स और सेमी सर्कुलर कैनल। क्लियर? द सेकंड फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल ऑफ मैक्यूली इज द स्टैटिक बैलेंसिंग। मतलब जब आप रेस्ट पोजीशन पे हो, स्टैटिक पोजीशन पे हो, उस टाइम आपके बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? दैट इज द मैक्यूली। और मैक्यूली किसके अंदर प्रेजेंट है? यूट्रिकल एंड सैक्यूल। एंड यूट्रिकल एंड सैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? इन द वेस्टिब्यूल। देन द थर्ड पार्ट, ऑर्गन ऑफ कॉर्टा का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? हियरिंग। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टा किसके प्रेजेंट है? दैट इज कॉक्लियर डक्ट में। एंड कॉक्लियर डक्ट किसका पार्ट है? कॉक्लिया का। सो अब तक हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स? दैट इज सेमी सर्कुलर कैनल प्लस वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड एज द वेस्टिबुलर apparatus, एंड उसका फंक्शनिंग क्या है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम, दैट इज द बॉडी बैलेंसिंग। एंड कॉक्लिया का फंक्शन क्या है? हियरिंग। सो दिस स्लाइड वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। I hope this is very much clear to you. Let's discuss vestibular apparatus, that is balancing or equilibrium of the body in detail. As you know, it is the organ of balance, balancing का काम करेगा। कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? इट इज लोकेटेड जस्ट अबोव द कॉक्लिया। इसके कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट? 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज द सेमी सर्कुलर कैनल, और वो कितने नंबर में प्रेजेंट है स्टूडेंट? 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स आर प्रेजेंट। नंबर 2 इज द यूट्रिकल और यूट्रिकुलस, एंड थर्ड वन इज द सैक्यूल और सैक्यूलस। सेमी सर्कुलर कैनल जो 3 है स्टूडेंट, उनको क्या बोला जाता है? सुपेरियर सेमी सर्कुलर कैनल, इंफीरियर एंड लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल। यूट्रिकल एंड सैक्यूल, आप मुझे बोलो यूट्रिकल प्लस सैक्यूल दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? यस प्लीज बोलो।
इनको बोला जाता है स्टूडेंट वेस्टिब्यूल, राइट। तो वेस्टिबुलर apparatus इज मेड अप ऑफ, आपको इतना समझ में आना चाहिए, सेमी सर्कुलर कैनल प्लस आइदर वेस्टिब्यूल और यू कैन से सेमी सर्कुलर कैनल प्लस यूट्रिकल प्लस सैकल. So both the answer are correct. Clear? So let's discuss more about the semicircular canal. They are present at 90 degree angle to each other. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनल है 1, 2 एंड 3, इन तीनों के बीच में कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री एंगल है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज swollen or the dilated part of semicircular canal is called as the ampullae, and ampullae contains a sensory part called as the crista ampullaris और ampullary crista. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर के 3 कैनाल्स है इट इज कॉल्ड एज द सेमी सर्कुलर कैनल, एंड इसके डाउन पोजीशन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्वोलन पार्ट से थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, एंड इसी डायलेटेड पार्ट को बोला जाता है स्टूडेंट्स एम्पुली, राइट. एंड इस एम्पुली के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, इस एम्पुली के अंदर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स 1, 2, 3. इन्हीं सेंसरी स्ट्रक्चर को जो एम्पुली के अंदर प्रेजेंट है उनको बोला जाता है क्रिस्टा एम्पुलरिस और एम्पुलरी क्रेस्ट. मतलब आपको क्या समझ में आया? सेमी सर्कुलर कैनल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमी सर्कुलर डक्ट्स. उनके जो एंडिंग्स है सेमी सर्कुलर कैनल वो क्या है? थोड़े से फुले हुए हैं, स्वलन है, डायलेटेड है, उसे हमने नाम दिया स्टूडेंट्स एम्पुला. एंड उस स्वलन पार्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेंसरी, उनको हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? क्रिस्टा एम्पुलरिस और द एम्पुलरी क्रेस्ट. क्लियर? अगर हम एम्पुला को जूम करेंगे स्टूडेंट, इस एम्पुला को अपन अगर जूम करेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा. सो लेट्स डिस्कस दिस स्ट्रक्चर इन डिटेल. सो ये क्या है स्टूडेंट? सेमी सर्कुलर कैनल. क्लियर? कितने सेमी सर्कुलर कैनल है? 3. सेमी सर्कुलर कैनल का जो एंड है उसे हमने क्या बोला स्टूडेंट? स्वेलिंग पार्ट को एम्पुला. और इस एम्पुला के अंदर ये जो भी पार्ट प्रेजेंट था इसे हमने क्या बोला? सेंसरी पार्ट, दैट इज क्रिस्टा एम्पुलरिस. सो इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? एम्पुलरी क्रेस्ट और क्रिस्टा एम्पुलरिस. सो दिस स्ट्रक्चर इज द क्रिस्टा एम्पुलरिस. क्लियर? यहाँ पे कुछ आपको स्टूडेंट्स सेल्स दिखाई देंगे. दीज आर सम सेल्स. इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सेंसरी सेल्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स. इनमें कुछ सेल्स सेंसरी सेल्स होते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले सेल्स को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज सपोर्टिंग सेल्स, राइट. अब इस सेल्स के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइट, जिनको अपन ने बोला है स्टूडेंट सीलिया ऑफ द सेंसरी सेल्स. और इसके जस्ट अबोव यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जिसे हमने नाम दिया स्टूडेंट्स क्यूप्यूला. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस दिस स्ट्रक्चर इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. एक अकोस्टिक रिज बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. इसमें कुछ सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, and some cells are there are called as the hair cells. So जिनके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? hairs होता है. So these are hair cells and rest all are the supporting cell. and इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टूडेंट्स क्रिस्टा एम्पुलरिस. क्लियर? अब अगर ध्यान से आप अगर इस हेयर सेल्स को देखोगे स्टूडेंट्स, सो इसके अंदर कुछ इमूवेबल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टीरियोसिलिया, एंड एक मूवेबल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द काइनोसिलियम, राइट. एंड इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स हेयर बंडल. क्लियर? एंड ये सभी पार्ट किस में प्रेजेंट है स्टूडेंट? एम्पुला के अंदर. किस में प्रेजेंट है? एम्पुला के अंदर. एंड इसके ऊपर यहाँ पे एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हमने नाम दिया स्टूडेंट्स क्यूप्यूला. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस हियर. सो हियर यू कैन सी these are the acoustic ridge, there are some hair cells are present, और इसको सपोर्ट करने वाले ये जो भी है जिनको हेयर्स नहीं है those cells are called as the supporting cells. एंड जो हेयर सेल्स है यही अपने क्या है स्टूडेंट्स? सेंसरी सेल्स है. एंड इन दोनों को मिला के अपन ने क्या बोला? क्रिस्टा एम्पुलरिस. और ये पूरा किसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये स्ट्रक्चर एम्पुला के अंदर. ये ऊपर जो भी जिलेटिनस पार्ट है इसको हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? क्यूप्यूला. एंड ये जो हेयर सेल है, ये जो हेयर सेल है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये क्या है? हेयर बंडल. और इस हेयर बंडल में 2 टाइप्स के हेयर्स प्रेजेंट है, दैट इज द काइनोसिलियम जो क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? मूवमेंट कर सकता है,
एंड कुछ ऐसे हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? स्टीरियोसेलिक। सो लेट्स रिवाइज द थिंग्स। In the ampulla, internal cuboidal epithelium form a ridge-like projection called as the acoustic ridge. Small immovable microvilli are present, that's called as the stereocilia. Single movable cilium is called as the kinocilium. Above the crista ampullaris, a gelatinous substance present called as the gelatinous cupula, which is attached to the roof of ampulla. Right? Now, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 के जो भी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो अगर एंडोलिम्फ में अगर प्रेजेंट है तो उनको बोला जाता है स्टूडेंट्स ओटोलिथ और ओटोकोनिया। कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स को ओटोलिथ और ओटोकोनिया बोला जाता है और किस में प्रेजेंट होता है? जनरली एंडोलिम्फ में, बट ये अब्सेंट होता है स्टूडेंट्स एम्पुला में। किस में अब्सेंट होता है? एम्पुला में। एंड किस में प्रेजेंट होता है? मैक्यूला में, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट फॉर नाउ आपको क्या याद रखना है? कैल्शियम कार्बोनेट्स के जो भी पार्टिकल्स है जो एंडोलिम्फ में पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? ओटोलिथ और ओटोकोनिया। और ये किस में एब्सेंट है? एम्पुला में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? एंड क्रिस्टा का क्या फंक्शन है स्टूडेंट जो एम्पुला में प्रेजेंट है? क्रिस्टा मेंटेन्स द बॉडी इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ बॉडी मूवमेंट। जब भी आप मूवमेंट में हो, डायनेमिक कंडीशन में हो, बॉडी मूवमेंट करती है, उस टाइम बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? क्रिस्टा, जो कि हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया है। Dear students, we have various types of microscopes. One of them is the scanning electron microscope. So just have a look at the scanning electron micrograph of crista ampullaris. Scanning electron micrograph of crista ampullaris look like this. So this is an image of a cilium. The next part is the vestibule. Vestibule, as you know, it's made up of utricle plus saccule. Utricle and saccules contain a projecting ridge called as the macula. So जो sensory part होता है vestibule के अंदर, that is utricle and saccule के अंदर, उसे हमने नाम क्या दिया था स्टूडेंट्स? मैक्यूला। एंड यूट्रिकल एंड सैक्यूल एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है? सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट। यूट्रिकल में एक मैक्यूला प्रेजेंट होता है एंड सैक्यूल में एक मैक्यूला प्रेजेंट होता है। तो अपने बॉडी में एक ईयर में 2 मैक्यूला, सो 2 ईयर में कितने मैक्यूला स्टूडेंट्स? 4 मैक्यूला आर प्रेजेंट। ओके, अब मैक्यूला जो है स्टूडेंट्स, इट इज 2 mm इन डायमीटर एंड कंटेन्स द एरे ऑफ सेंसरी एंड सपोर्टिंग सेल। सो दिस इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर। अब कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स को जो एंडोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं उनको हमने क्या बोला था स्टूडेंट्स? ओटोलिथ, ओटोकोनिया, ईयर डस्ट और स्टैटोलिथ, जो कि एब्सेंट किसमें थे? एम्पुला में, बट दे आर प्रेजेंट इन द मैक्यूला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। एज यू नो द फंक्शन ऑफ क्रिस्टा विच आर प्रेजेंट इन द एम्पुला, उसका क्या फंक्शन था? इक्विलिब्रियम, बट इन द डायनेमिक कंडीशन, मूवमेंट में बॉडी को फंक्शन करना, बैलेंस करने का। बट यहाँ पे मैक्यूला का क्या फंक्शन है स्टूडेंट? बॉडी को बैलेंस करने का, बट इन द स्टैटिक पोजीशन। अब स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में कभी कभी एक पॉइंट आता है कि ओटोलिथ ऑर्गन, तो क्या है? ध्यान से सुनिए। यूट्रिकल प्लस सैक्यूल, इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ का मतलब क्या है? कैल्शियम, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल प्रेजेंट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट है? मैक्यूला में। एंड मैक्यूला किसके अंदर प्रेजेंट है? यूट्रिकल प्लस सैक्यूल्स में। सो यूट्रिकल प्लस सैक्यूल दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यूट्रिकल प्लस सैक्यूल और द वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड एज द ओटोलिथ ऑर्गन। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला। दिस इज द इंटरनल ईयर। यहाँ पे यूट्रिकल है एंड सैक्यूल है जो एक दूसरे को कनेक्टेड है सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट से। इसे अगर हम जूम करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूट्रिकल एंड सैक्यूल के अंदर यहाँ पे कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हमने नाम क्या दिया स्टूडेंट्स? मैक्यूला। एंड इस मैक्यूला को अगर अपन जूम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे क्रिस्टा का स्ट्रक्चर था, सपोर्टिंग एंड सेंसरी सेल्स प्रेजेंट थे, मैक्यूला का भी ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज सपोर्टिंग सेल्स आर प्रेजेंट एंड एज वेल एज हेयर सेल्स आर प्रेजेंट। हेयर सेल्स के पास भी क्या है स्टूडेंट्स? हेयर सेल्स के पास भी क्या है? हेयर बंडल्स आर प्रेजेंट, राइट। एंड इस हेयर बंडल्स के ऊपर जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ पे क्रिस्टल्स प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसको अपन ने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? ओटोलिथ। क्लियर? एंड ये जो सेंसरी सेल्स है, हेयर सेल्स, यहाँ से नर्व्स अराइज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। ये नर्व्स जाएगा ब्रेन तक। क्लियर? इन डिटेल अपन वर्किंग ऑफ ईयर में बात करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर सेल्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैक्यूला का स्ट्रक्चर है। मैक्यूला एंड क्रिस्टा का ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर होता है, जस्ट क्रिस्टा के ऊपर जो जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ओटोलिथ एब्सेंट होता है, वी कॉल्ड इट एज द क्यूपिला। एंड यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर है उसे हमने नाम दिया है ओटोलिथ मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओटोलिथ, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब वहाँ पे क्रिस्टा में जैसे सपोर्टिंग एंड हेयर सेल थे, यहाँ पे भी सपोर्टिंग एंड हेयर सेल्स प्रेजेंट है। सो दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स जो किसको सपोर्ट करेंगे? सेंसरी हेयर सेल्स। एंड ये अपने हेयर सेल्स है, दैट इज द सेंसरी सेल्स।
तो हेयर सेल्स में आप देख सकते हो ये 3 जो इमूवेबल है दैट इज कॉल्ड एज द स्टीरियोसिलिया एंड एक जो मूवेबल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द काइनोसिलियम, और इन दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है? हेयर बंडल। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। माय डियर स्टूडेंट्स, as you know that the calcium carbonate crystals are also called as the otolith or otoconia or ear test. So let's see the scanning electron micrograph of this crystalline structure that is the otolith. Okay, so let's see the scanning electron microscope image of the otolith. So this is a calcium carbonate crystal जिसका scanning microscope से image लिया गया है. So let's discuss the structure of cochlea. Cochlea is helping us in the hearing. As we all know, that is the organ of hearing is the cochlea, located below the vestibular apparatus. As you know, this complete structure is called as the cochlea. This part is called as the vestibular apparatus. तो cochlea किसके नीचे present है स्टूडेंट? Vestibular apparatus के. So it is just located below the vestibular apparatus. It is the coil structure. As you can see, ये क्या है स्टूडेंट? एक coil structure है and ये 2 3/4 मतलब 2 7.5 turns ये लेता है, right? In humans, this coil structure is about 9 mm wide and at the base and 5 mm high. It is snail-like structure. इसका shape कैसा है स्टूडेंट? Snail-like shape इसका है. It is originated from this word. So this is a snail. So you can look carefully. Cochlea just looking like a snail. So it is also called as the snail-like structure. Clear? So let's discuss the structure of cochlea in detail. So the cochlea contain 3 parts, that is scala vestibuli, scala media and scala tympani. Scala vestibuli is also called as vestibular duct. Scala media is called as the cochlear duct and scala tympani is called as the tympanic duct. Scala vestibuli contains the perilymph, scala media contains the endolymph, scala tympani contains the perilymph. Scala vestibuli is present at the upper side of the cochlea. Scala media is present between the scala vestibuli and scala tympani, and scala tympani is present at the lower or the ventral side of the cochlea. From this slide, at least student, you can tell me that scala vestibuli contain perilymph and scala tympani also contains the perilymph. And perilymph किसके अंदर present होता है student? Bony labyrinth के अंदर. मतलब perilymph is a part of bony labyrinth, whereas endolymph is present inside the membranous labyrinth. So you can understand that the scala vestibuli and scala tympani are the part of bony labyrinth, whereas scala media, which is also called as the cochlear duct, this is the part of membranous labyrinth. Clear? This is very very important information. Please understand, right? Let's go ahead. So in this image, now look at very carefully students. यहाँ पे जो ग्रीन कलर का फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? पेरीलिम्फ. दिस इज कॉल्ड एज द पेरीलिम्फ. एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ब्लू कलर का फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोलिम्फ. अब स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है इसे हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? कॉक्लिया. एंड अगर आप इस स्ट्रक्चर को जूम करते हो तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा स्टूडेंट्स? लेट्स सी. तो यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को क्या किया है स्टूडेंट? जूम किया है. तो कॉक्लिया में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे ऐसे ब्रेक करोगे, अगर इसे आप ऐसे ब्रेक करोगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, रीजन नंबर 1, ब्लू वाले को मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स रीजन नंबर 2, एंड ग्रीन वाले को अगेन मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स रीजन नंबर 3. सो यहाँ पे जो ये कैसे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, रीजन नंबर 1, 2 एंड रीजन नंबर 3. अब रीजन नंबर 1 में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ग्रीन. मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? पेरिलिम्फ. रीजन नंबर 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? ब्लू. सो यहाँ पे ब्लू का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज एंडोलिम्फ. रीजन नंबर 3 में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? रीजन नंबर 3 में अगेन ग्रीन फ्लूइड, दैट इज पेरिलिम्फ. सो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाला पार्ट है रीजन नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज स्केला वेस्टिबुला. जो बीच वाला पार्ट है रीजन नंबर 2, इट इज कॉल्ड एज स्केला मीडिया और कॉक्लियर डक्ट. एंड जो थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज स्केला टिम्पैनी. क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यू कैन सी
this region, this first structure is called as scala vestibuli. This blue colored portion is called as scala media, and this third part, that is scala tympani. क्लियर? तो अगर हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक किया स्टूडेंट, मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया और इसे ऐसे घुमा के अगर आपको दिखाया तो आपको टीएस सेक्शन दिखेगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, अगर हमने इसे ऐसे कट किया तो ये स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे दिस इज अवर रीजन नंबर 1, दिस इज अवर रीजन नंबर 2, दिस इज रीजन नंबर 3। मतलब ये सेकंड रीजन, मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉक्लियर डक्ट, और इसे हमने क्या नाम दिया था, स्केला मीडिया। थर्ड वाला क्या था, स्केला टिम्पैनी, एंड फर्स्ट वाला क्या था, स्केला वेस्टिबुलाई, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को हम अगर और जूम करेंगे तो लेट्स सी ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। सो दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, क्या प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ। अगेन उसके नीचे ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉक्लियर डक्ट, और अपन इसको क्या बोल सकते हैं, स्केला मीडिया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, एंडोलिम्फ, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, स्केला टिम्पैनी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ। मतलब आप यहाँ पे बता सकते हो स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी कंटेनिंग पेरिलिम्फ आर द पार्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ, एंड कॉक्लियर डक्ट और स्केला मीडिया कंटेनिंग एंडोलिम्फ इज द ओनली पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। क्लियर? एंड नाउ स्टूडेंट, ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है, ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है एंड ये जो कॉक्लियर डक्ट है, इसके बीच में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसी को बोला जाता है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, राइट। एंड यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट एंड स्केला टिम्पैनी इनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है स्टूडेंट्स बेसिलार मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये जो बेसिलार मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक बॉक्स में आप ऑर्गन दिखाई देगा, इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और स्पाइरल ऑर्गन। क्लियर? एंड इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में यहां पे स्टूडेंट्स एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो अगर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को अगर हमने जूम किया तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखाई देगा। क्लियर? तो इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसको क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, राइट। एंड ऑर्गन ऑफ मेम्ब्रेन किसके ऊपर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, किसके ऊपर ये लोकेटेड है, बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिलार मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर ये बेसिलार मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट ऊपर ये लोकेटेड है। अब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी कुछ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, एंड कुछ सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट है, राइट, जिसको हेयर से, दैट इज द हेयर सेल एंड दैट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग सेल इज जस्ट सपोर्टिंग, एंड ये जो फॉर्मेट है सेल्स सपोर्टिंग एंड हेयर सेल्स, क्रिस्टा में भी सेम था, मैक्यूला में भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। क्लियर? क्रिस्टा में इन सेल्स के ऊपर क्या था, क्यूपिला था, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल अब्सेंट थे। मैक्यूला में क्या था, उसके ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, ओटोलिथ मेम्ब्रेन था, जिसमें ओटोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट थे। और यहाँ पे इन सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये जो सेल्स है स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स है ये कुछ आउटसाइड में प्रेजेंट है, उनको बोला जाता है आउटर हेयर सेल्स, सिंपल, और कुछ इनर साइड में प्रेजेंट है, उनको बोला जाता है इनर हेयर सेल्स। इन दोनों के बीच में ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसको बोला जाता है टनल ऑफ कॉर्टाई। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, टनल ऑफ कॉर्टाई। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये किसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉक्लियर डक्ट और स्केला मीडिया जिसे अपन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉक्लियर डक्ट और स्केला मीडिया में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, एंडोलिम्फ, जो कि पार्ट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का। पर ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कॉक्लियर डक्ट के अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, नो डाउट, बट इसके अंदर जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट है, उस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी एक टनल प्रेजेंट है, दिस इज द टनल ऑफ कॉर्टाई। ये जो टनल ऑफ कॉर्टाई है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टाई लिम्फ। क्लियर? So this is very, very important. So this was all about the structure of vestibular apparatus and the cochlea. Congratulations, my dear student. This was all about the internal ear. I am so happy that you are sincerely watching the video. This was all about the structural part of the internal ear.
Now our last part is the working of ear, which is the very most important part. So please don't skip it, please watch it carefully. And अगर आपको ये वीडियो genuinely अच्छा लग रहा है, so please comment below. Next topic आपको कौन सा चाहिए केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में. Second point is please like the video and also share the video. Thank you. Congratulations. Let's understand how ear helps in balancing the body. Dear students, this is the last part of the topic. First we will start with the mechanism of semicircular canal, and as you know that these are the semicircular ducts. There are three semicircular canals, that is the anterior, lateral and posterior semicircular canals. And आपको इतना पता है स्टूडेंट्स, इनका जो swollen पोर्शन है, जो फूला हुआ पोर्शन है, इसको हमने क्या बोला स्टूडेंट्स? एम्प्यूला. और हमारे पास कितना एम्प्यूला है स्टूडेंट्स? 3. एंड एम्प्यूला के अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टा एम्प्यूलारिस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्रिस्टा एम्प्यूलारिस, राइट. एंड इस क्रिस्टा एम्प्यूलारिस का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इन द बैलेंसिंग. बट विच बैलेंसिंग? इन द डायनेमिक बैलेंसिंग. मतलब जब आपकी बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है, जब आपके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तब आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम किसका है स्टूडेंट? दैट इज द क्रिस्टा एम्प्यूलारिस. ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग. सो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सेमी सर्कुलर का जो एम्पुला पोर्शन है उसे जूम किया है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है. एट दैट टाइम आपके बॉडी में जो सेमी सर्कुलर कैनल्स है उनके अंदर ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज द एंडोलिम्फ. उसका सिचुएशन कैसे है आप देखो. दिस इज द क्यूपिला. सो दिस इज इन द नॉर्मल पोजिशन. तो यहाँ पे आप हेयर सेल्स देख सकते हो जो कि सेंसरी सेल्स है, जो एक्चुअल इंपल्स लेके जाएगा ब्रेन तक. तो ये जो सेंसरी सेल्स है इसका पोजीशन आप देख सकते हो, कोई भी बेंट नहीं है. दिस वाज इन द नॉर्मल कंडीशन. जब भी आपके बॉडी में मूवमेंट होगा, फॉर एग्जांपल डांसर्स है, जिम्नास्टिक्स है, स्पोर्ट्स में अगर आप अलग अलग मूवमेंट करते हो बॉडी की, उस कंडीशन में आपकी बॉडी कैसे बैलेंस आपका बनाए रखती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट, आपके बॉडी में सेमी सर्कुलर कैनल सुपेरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल ही क्यों दिए गए हैं, उसका एक पर्पज है स्टूडेंट. जैसे ही आपका हेड का मूवमेंट अप डाउन होगा तो जो आपके सुपेरियर सेमी सर्कुलर कैनल्स है उसके अंदर जो एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है उसका मूवमेंट होगा. जैसे आपका हेड साइडवाइज मूवमेंट करेगा तो आपका जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल्स है उसके बीच में मूवमेंट होगा, उसका जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ उसमें मूवमेंट होगा. जब भी आप लैटरल मूवमेंट करोगे हेड का, राइट, तो उस टाइम जो भी आपके लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल से उनके अंदर जो एंडोलिम्फ है उसका मूवमेंट होगा. तो आपके हेड, ये जो भी स्पोर्ट्स है, जहाँ पे भी आप डांस कर रहे हो, इन सभी चीज़ों में आपके बॉडी का अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होता है. सो चाहे आप किधर भी मूवमेंट कर दो, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल से आप मूवमेंट करोगे तो आपके जो सेमी सर्कुलर कैनल्स है उनमें जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है उसका मूवमेंट होगा. और जैसे ही एंडोलिम्फ का मूवमेंट होगा, इसके अंदर जो क्यूपुला प्रेजेंट था, ये जो क्यूपुला प्रेजेंट था, इस एंडोलिम्फ के मूवमेंट की वजह से क्यूपुला का भी मूवमेंट होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूपुला बेंट हो गया है. और जैसे ही क्यूपुला बेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो स्ट्रेट नॉर्मल हेयर सेल्स थे, जो सेंसरी सेल्स है हमारे, वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे बेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस क्यूपुला. और जैसे ये बेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होता है. एंड ये इम्पल्स कैरी करेगा स्टूडेंट्स ये सेंसरी नर्व. एंड इसी नर्व को बोला जाता है स्टूडेंट वेस्टिबुलर नर्व. एंड दिस वेस्टिबुलर नर्व इम्पल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेके कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट? आपके सेरेबेलम तक. एंड सेरेबेलम फिर आपको बैलेंसिंग करवाएगा. सो इन दिस वे एक्चुअली द क्रिस्टा एम्पुलारिस, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द एम्पुला, and ampulla is a part of semicircular canal, so we can say in this way semicircular canal or crista ampullaris helps us in the balancing, in the dynamic condition. Alright, so I hope this is very much clear to you. Now student, we will understand the function of macula that is involved in the static balancing. Right, so macula कहाँ पे present है, just मैं revise कर देता हूँ. This is the utricle, this is the saccule, एंड यूट्रिकल में एक मैक्यूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड सैक्यूल में कितना मैक्यूला है? एक मैक्यूला. राइट, सो मैक्यूला के स्ट्रक्चर को अभी अपन जूम करेंगे. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस स्टूडेंट अपराइट कंडीशन में बैठा हुआ है.
अब यहाँ पे इसके जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर में जो इसका यूट्रिकल एंड सैक्यूल का जो पार्ट है उसके अंदर जो मैक्यूला प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सो ये क्या है स्टूडेंट्स, हेयर सेल्स है। एंड हेयर सेल्स भी इस कंडीशन में उसके बॉडी में कैसे प्रेजेंट है, अपराइट कंडीशन में प्रेजेंट है, बिल्कुल भी बेंट नहीं है, राइट। एंड हेयर सेल्स के ऊपर कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज ओटोलिथ प्रेजेंट है। बट जैसे ही इसका हेड ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव होगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव होगा, एंड ये कब होता है स्टूडेंट, तो अगर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो आफ्टरनून में जब आप खाना खाते हो स्पेशली, एंड जब उसके बाद लेक्चर अटेंड करने जाते हो तो मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट, आप कुछ देर के लिए अटेंटिव रहते हो बट आफ्टर सम टाइम आपको थोड़ी सी नींद आने लगती है। सो लाइक दिस नींद आने लगती है एंड आप एक डीप स्लीप में जाते हो, और जैसे ही डीप स्लीप में जाते हो तो आपका हेड डाउन हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, इसके अराउंड कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है स्टूडेंट, दैट इज एंडोलिम्फ। ये किसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैक्यूला का, जो कि यूट्रिकल एंड सैक्यूल में प्रेजेंट है। सो जैसे ही आपका हेड नीचे जाएगा स्टूडेंट, इसके अंदर जो एंडोलिम्फ प्रेजेंट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे एंडोलिम्फ डिस्टर्ब होगा ये जो आपका ओटोलिथ मेम्ब्रेन है ये भी डिस्टर्ब होगा, ये भी बेंट होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द ग्रेविटी ये मूव होगा, और ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन अगर मूव हो रहा है तो ये जो स्ट्रेट हेयर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे जो स्ट्रेट हेयर प्रेजेंट थे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये हेयर्स क्या हो गए स्टूडेंट, बेंट हो गए। देख सकते हो आप हेयर्स का क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे बेंडिंग। और जैसे ही हेयर्स यहाँ पे बेंट होते हैं वो एक्साइट होते हैं, एंड यहाँ पे एक इम्पल्स प्रोड्यूस होता है जो कि कैरी करता है स्टूडेंट यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व। एंड ये वेस्टिबुलर नर्व इंफॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाएगी स्टूडेंट, सेरिबेलम पार्ट तक, एंड फिर आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, राइट। सो जब कभी भी स्टूडेंट आप एक गहरे नींद में होते हो, वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग और वेन एवर यू आर स्टडी और वेन एवर इन द क्लासरूम, अगर आप मूवी भी देख रहे हो तो थिएटर में भी कभी कभी आपको नींद आ जाती है, एंड सडनली जैसे आपका हेड नीचे जाता है आपको एक जर्क लगता है, राइट। तो उसी दौरान फिर से आप आपके स्टेबल कंडीशन में आ जाते हो, राइट। सो ये दोनों प्रोसेसेस, दैट इज द स्टैटिक बैलेंसिंग बाय द मैक्यूली एंड द डायनामिक बैलेंसिंग बाय क्रिस्टी, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। Students, let's decode the mechanism of hearing. डियर स्टूडेंट्स प्लीज हैव सम पेशेंस, जस्ट ये लास्ट ही पार्ट है, राइट। सो आपको पता है हियरिंग में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज द कॉक्लिया और द कॉक्लियर डक्ट। तो ये आपके बॉडी में कैसे प्रेजेंट है स्टूडेंट, सर्कुलर पार्ट में प्रेजेंट है, राइट। बट इसका जो मैकेनिज्म है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द सर्कुलर फैशन। सो हम इसे हाइपोथेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, हाइपोथेटिकली हम इसे स्ट्रेट करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, राइट। तो ये हमें कैसे दिखाई देगा स्टूडेंट्स, तो अगर इसे स्ट्रेट किया तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, क्लियर। सो क्विकली हम लोग यहाँ पे कॉक्लिया का स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद ये क्या है स्टूडेंट, आपका ईयर ड्रम है। सो दिस पार्ट इज द मिडल ईयर, एंड इसके अंदर ये जो भी पार्ट है स्टूडेंट दैट इज द इंटरनल ईयर, एंड इसके अंदर ये क्या है आपका कॉक्लियर पार्ट प्रेजेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द मिडल ईयर जो पार्ट है उसे हमने बोला स्टूडेंट बेस, एंड इस पार्ट को हमने बोला एपेक्स। दिस कंप्लीट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टेपिस जिस पार्ट को अटैच्ड है, जिस विंडो को अटैच्ड है, उसमें हमने क्या बोला था, ओवल विंडो, एंड उसके नीचे एक विंडो होता है दैट इज कॉल्ड एज द राउंड विंडो। सो इसे हमने ऐसे डिस्कस किया था स्टूडेंट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर कौन सा फ्लूइड है स्टूडेंट, ग्रीन। पार्ट 2 के अंदर कौन सा फ्लूइड है, ब्लू। एंड पार्ट 3 के अंदर कौन सा फ्लूइड है स्टूडेंट, ग्रीन। एंड ये ग्रीन फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, दैट इज पेरिलिम्फ। ब्लू वाले को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, दैट इज एंडोलिम्फ। एंड ग्रीन वाले को अगेन हमने क्या नाम दिया था, दैट इज पेरिलिम्फ। तो अब आप अच्छे से रिकॉल कर सकते हो स्टूडेंट, इसी का नाम क्या था स्टूडेंट, स्केला वेस्टिबुला। इसी का नाम था स्टूडेंट स्केला मीडिया, एंड इसी को हमने बोला था कॉक्लियर डक्ट। एंड जो लास्ट पार्ट था इसे हमने बोला था स्केला टिम्पैनी, क्लियर स्टूडेंट्स। कैन यू रिमेंबर, स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला टिम्पैनी जिनके अंदर पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, ये किसका पार्ट था एक्चुअली, बोनी लैब्रिंथ का। एंड जो एंडोलिम्फ वाला सेक्शन है दैट इज स्केला मीडिया और द कॉक्लियर डक्ट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, क्लियर। प्लीज हैव ए नोट स्टूडेंट, स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला मीडिया के बीच में ये जो भी मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, इसे क्या बोला जाता है, रेसनर्स मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन।
तो अगर आपसे किसी ने भी पूछा व्हाट इज द रेसिनस मेम्ब्रेन, सो इट इज अ मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुलाई फ्रॉम द स्केला मीडिया. क्लियर? Then again student, as we have discussed, the membrane between scala media and scala tympani is called as the basilar membrane. Can you remember? And at the end student, ये जो end है, ये जो apex है जहाँ पे scala vestibuli and scala tympani ये दोनों join हो रहे हैं, this apex is called as the helicotrema. Clear? So the point of junction between the scala vestibuli and tympani is called as what? हेलिकोट्रेमा. एंड स्टूडेंट, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है इसके जस्ट ऊपर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है. उसी ऑर्गन को हमने क्या बोला था स्टूडेंट? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, राइट? एंड ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कैसे था स्टूडेंट? सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे नीचे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे द बेसिलर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे हमने क्या बोला? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. दीज आर दी सपोर्टिंग सेल्स. ये भी क्या है स्टूडेंट? सपोर्टिंग सेल्स. एंड इन्हीं सपोर्टिंग सेल्स को यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए स्टूडेंट्स. इसके अंदर होते हैं डाइटर सेल्स, हैंसन सेल्स एंड रॉड सेल्स. तो दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट इन दी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्टिंग सेल प्रेजेंट इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. क्लियर? सो ये आपको अच्छे से याद रखना है. जिनको हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स उसको हमने क्या बोला था? सेंसरी सेल्स. दैट इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे कुछ आउटर हेयर सेल्स है एंड कुछ इनर हेयर सेल्स है. इन हेयर सेल्स के ऊपर इमीडिएटली एक थिन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. सो अगर आपको क्वेश्चन आया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉक्लिया, सो इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. क्लियर? स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, जैसे बाहर से साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस आएंगे, ये वाइब्रेशन की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, बेसिलर मेम्ब्रेन ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. अब जैसे ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर जो हेयर सेल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, जो हेयर सेल्स प्रेजेंट है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन अप डाउन होगा वाइब्रेशन की वजह से, तो ये हेयर सेल्स भी अप डाउन हो जाएंगे, राइट? अब ये हेयर सेल जैसे अप डाउन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशंस, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो जैसे ये बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन ये हेयर सेल इसे टकराएंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, एंड यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन यहाँ पे एक इंपल्स प्रोड्यूस होगा, जो इंपल्स इंफॉर्मेशन लेके जाएगा इन सेंसरी नर्व्स के थ्रू. दैट इज उन नर्व्स को अपन ने क्या बोला है? कॉक्लियर नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास. दैट इज द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ब्रेन. क्लियर? सो लेट्स सी द मैकेनिज्म इन डिटेल. डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स examiner ask a question, that is what is an auditory receptor. तो what is an auditory receptor? Please listen. ये जो आपके हेयर सेल्स है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के, जिसको अपन ने सेंसरी सेल्स बोला है, सो दिस हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, दैट इज द सेंसरी सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इन्हीं को बोला जाता है ऑडिटरी रिसेप्टर्स. सो अगर किसी ने भी आपसे पूछा वेयर डज ऑडिटरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड, सो दे आर लोकेटेड इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. इज इट वेरी क्लियर टू यू? यस. लेट्स गो अहेड. Let's decode the actual mechanism of hearing. Please remember that we can only listen sound having frequency range between 20 Hz to 20,000 Hz. Please note down this point. Students, please understand important point. This is external ear, this is the middle ear, and this is the inner ear. External ear contains air. Middle ear also consists of air, but internal ear contain fluid, right? And as we know that there are three states of matter, the basic state of matter, that is the solid, liquid and gas. So inside the solid, the particles are tightly packed to each other. Inside the liquid, the particles have space between them, and in the gaseous state, the particles are far away from each other. When you listen to any sound, the waves are created and they are received by the external ear and they are drained inside the internal ear. Dear students, यहाँ पे बहुत सारे साउंड वेव्स आएंगे एंड स्ट्राइक करेंगे ईयर ड्रम पे, जिनके पास अपना अपना एक वाइब्रेशन एनर्जी होगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर, एयर इज प्रेजेंट as a medium, but the internal ear fluid is present. Fluid is a liquid state. So the sound waves can move easily in the air
but it cannot move easily or penetrate the liquid with low energy. सो यहाँ पे अगर इन साउंड वेव्स को एंटर करना है इंटरनल एयर के फ्लूइड में तो इनके पास एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए. एंड हम लोग वही तो बोलते हैं स्टूडेंट, मिडल ईयर क्या कर रहा है, साउंड्स को एम्पलीफाई कर रहा है, राइट, उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा है. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ईयर ड्रम है एंड यहाँ पे मैलियस, इनकस एंड सामने ये स्टेपिस है. तो स्टेपिस के सामने क्या है यहाँ पे अटैच्ड स्टूडेंट, दैट इज द ओवल विंडो. तो यहाँ पे जो भी साउंड वेव्स आएगी इसे टकराएगी एंड ये पास ऑन होगा मैलियस को, देन इंकस को एंड देन स्टेपिस के थ्रू यहाँ पे ओवल विंडो के थ्रू यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट है, लिक्विड, इसके अंदर एंटर हो जाएगा. अब स्टूडेंट ये जो ईयर ड्रम है इसका जो साइज है एंड ओवल विंडो जो इंटरनल ईयर का एंट्री पॉइंट है उसका जो साइज है, ईयर ड्रम का साइज 18 टाइम्स ग्रेटर है दैन द ओवल विंडो. मतलब ये जो ओवल विंडो है इससे 18 टाइम्स बिगर ईयर ड्रम है. सो द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन इज जो भी वाइब्रेशन एक्सटर्नल ईयर से आके ईयर ड्रम को टकरा रहे हैं, ईयर ड्रम क्या कर रहा है, उनको कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, राइट, एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है नैरो. तो ऐसा साइज कम होते 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 तो यहाँ पे स्टूडेंट कम साइज में ज़्यादा एनर्जी आ गई. मतलब हमने साउंड वेव्स को क्या किया, वाइब्रेशंस को क्या किया, मैलियस, इनकस, स्टेपिस ने कॉन्सेंट्रेट किया, राइट. एंड अब इन साउंड वेव्स के पास एक डिसेंट एनर्जी होता है जिससे कि ये एयर से इस फ्लूइड में इजीली पेनेट्रेट हो जाएंगे. क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मिडल ईयर. प्लीज रिमेंबर दिस. यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, साउंड वेव्स आए, ईयर ड्रम को टकराए, मैलियस, इनकस, स्टेपिस के थ्रू अंदर गए एंड यहाँ से दिस इज द ओवल विंडो. ओवल विंडो से ये वाइब्रेशंस अंदर एंटर हो जाएंगे. किस में एंटर होंगे स्टूडेंट्स, स्केला वेस्टिबुलाई में. एंड स्केला वेस्टिबुलाई में क्या प्रेजेंट है, दैट इज द पेरिलिम्फ, राइट. इन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया के नीचे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, रेसनर्स मेम्ब्रेन. बिटवीन द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया रेसनर्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. तो जैसे ही साउंड वेव्स इस स्केला वेस्टिबुलाई में एंटर करते हैं तो ये जो स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर जो पेरिलिम्फ है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. ये फ्लूइड वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही ये फ्लूइड वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा इसके नीचे रेसनर्स मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये रेसनर्स मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो वाइब्रेशन से ये एंटर कर जाएंगे एंडोलिम्फ में, जो कि पार्ट है स्केला मीडिया का और कॉक्लियर डक्ट का. और जैसे ही ये एंडोलिम्फ में वाइब्रेशंस पास ऑन हो जाएंगे, एंडोलिम्फ वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. और एंडोलिम्फ के नीचे जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे हमने क्या बोला, बेसलर मेम्ब्रेन. तो बेसलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे बेसलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा सो इस बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट, दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. एंड एज यू नो when the basilar membrane starts vibrating, organ of corti starts vibrate. मतलब यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, अप डाउन वाइब्रेट हो जाएंगे, राइट. बेसलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो जाएगा ना, अप डाउन. तो इसके ऊपर क्या है, हेयर सेल्स, दैट इज सेंसरी सेल्स भी अप डाउन वाइब्रेट हो जाएंगे. एंड ये जब वाइब्रेट होगा, ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये इसे रब हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रब होगा. और जैसे ही यहाँ पे रब होगा डीपोलराइजेशन होगा एंड यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगा, राइट. तो यहाँ पे जैसे इंपल्स जनरेट होगा, ये इंपल्स, ये जो इंफॉर्मेशन है साउंड वेव्स की, ये जो साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन है, ये सेंसरी नीचे जो कॉक्लियर नर्व्स है उसके थ्रू लेके जाएगा आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक, राइट. एंड आप चीजों को सुन पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, क्विकली रिवाइज द थिंग्स. इनिशियली एक्सटर्नल ईयर क्या करता है स्टूडेंट, साउंड वेव्स को रिसीव करता है. देन दिस साउंड वेव्स आर चैनलाइज्ड टू द मिडल ईयर. मिडल ईयर से ये साउंड वेव्स एंटर होते हैं इन द इंटरनल ईयर. एंड इंटरनल ईयर में भी ये किधर जाता है स्टूडेंट्स, इन द स्केला वेस्टिबुलाई पार्ट. एंड स्केला वेस्टिबुलाई में क्या प्रेजेंट है, दैट इज द पेरिलिम्फ. जैसे साउंड वाइब्रेशन, साउंड वेव्स पेरिलिम्फ में जाते हैं, पेरिलिम्फ नाम के फ्लूइड में जाते हैं, तो क्या होगा, पेरिलिम्फ वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे पेरिलिम्फ वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया जो है इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसनर्स मेम्ब्रेन. तो जैसे ही पेरिलिम्फ वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, ये जो मेम्ब्रेन है बिटवीन स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिबुलाई, ये भी क्या होता है, रेसनर्स मेम्ब्रेन वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है. तो ये जैसे वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, ये जो साउंड वेव्स, इनके जो वाइब्रेशंस है ये एंटर कर जाते हैं स्टूडेंट्स स्केला मीडिया में, राइट. अब वाइब्रेशंस किधर आ गए स्टूडेंट्स, इन द स्केला मीडिया, जिसको अपन ने कॉक्लियर डक्ट करके भी बोला है. अब जैसे ही स्केला मीडिया में साउंड वाइब्रेशंस आते हैं, एज यू नो दैट द स्केला मीडिया और द कॉक्लियर डक्ट कंटेन द एंडोलिम्फ. तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एंडोलिम्फ वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. अब एंडोलिम्फ जैसे ही वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, एंडोलिम्फ के नीचे कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है स्टूडेंट,
दैट इज द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, अप डाउन होना स्टार्ट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, राइट। और जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, राइट। सो जैसे बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आल्सो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, अप डाउन उसका मूवमेंट चालू हो जाएगा। अब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में दो तरह के सेल्स है, दैट इज द सपोर्टिंग सेल एंड द सेंसरी सेल्स। एंड सेंसरी सेल्स वही सेल्स है जिन्हें हमने क्या बोला था स्टूडेंट्स, हेयर्स। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के सेंसरी सेल्स जो हेयर सेल्स है, उनको स्पेशल नाम क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द ऑडिटरी सेल। ये भी आपको भूलना नहीं है, राइट। सो जैसे बेसिलर मेम्ब्रेन अप डाउन वाइब्रेट होगा, ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ये भी इसके साथ वाइब्रेट होगा, तो इसके ऊपर लगे हुए जो हेयर सेल्स है ये भी ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। बट स्टूडेंट इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो जैसे ये हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अप डाउन करेंगे, तो ये हेयर सेल्स किसे टकराएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, राइट। सपोज दीज आर द हेयर सेल्स एंड दिस इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो जैसे ये अप डाउन मूवमेंट करेगा, इनके बीच में क्या होगा स्टूडेंट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ये इसे टकराएंगे। और जैसे ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है और यहाँ पे एक इंपल्स प्रोड्यूस होता है। और ये इंपल्स, ये जो सेंसरी सेल्स है, इनको नीचे से एक नर्व अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिबुलर नर्व, राइट। सो ये वेस्टिबुलर नर्व ये इंफॉर्मेशन इस इंपल्स के थ्रू आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया में लेके जाती है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द साउंड। देन आगे का प्रोसेस होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया? नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट, साउंड वेव्स ईयर ड्रम को टकरा रहे थे, एंड देन दे आर पास टू द मैलियस, देन इनकस एंड देन स्टेपिस। एंड जैसे ये स्टेपिस किसको अटैच्ड है, दैट इज द ओवल विंडो। यहाँ पे स्टेपिस अटैच्ड है ओवल विंडो को। तो जैसे साउंड वाइब्रेशंस इस स्टेपिस के पास आएगा, यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड, एंड यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट, ओवल विंडो। ये इसको पुश करेगा ओवल विंडो को, पुश, फिर से पीछे आएगा, फिर से पुश करेगा, फिर से पीछे आएगा, राइट। एंड देन आगे जैसे साउंड वाइब्रेशन जाएंगे तो क्या होगा, रेजोनेंस मेम्ब्रेन अप डाउन वाइब्रेट होगा, देन वाइब्रेशन नीचे जाएगा तो बेसिलर मेम्ब्रेन अप डाउन होगा, राइट। देन टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकराएगा। सो ये जो सभी जो प्रोसेस है स्टूडेंट, एक सेकंड के अंदर ये कितने बार होगा, कैन यू गेस, 20,000 टाइम्स। एक सेकंड के अंदर ये सभी जो प्रोसेस है ये कितने बार होता है स्टूडेंट, दैट इज 20,000 टाइम्स। सो दिस वाज जस्ट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर। तो अब जो बचे हुए वाइब्रेशन से स्टूडेंट, जो बचे हुए वाइब्रेशन से वो यहाँ पे आगे मूव होंगे, एंड ये वाइब्रेशंस, ये जो आपका जो जंक्शन है दैट इज द हेलिकोट्रेमा, इससे पास होंगे। एंड जैसे ये नैरो रीजन से पास होंगे, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएंगी। तो अब ये जो साउंड वेव्स है, ये जो साउंड वेव्स के वाइब्रेशन है, अब इसका इंटेंसिटी कम होते 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 ये आगे जाएगा, एंड लास्ट में ये यहाँ पे जो राउंड विंडो है इसे जाके टकराएगा। और जैसे ही इसे जाके ये टकराएगा, साउंड वाइब्रेशंस का जो एनर्जी है वो मिनिमाइज हो जाएगा, एंड ये साउंड वाइब्रेशन निग्लिजिबल हो जाएगा और डिमिनिश हो जाएंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। समरी, information from vestibular apparatus is carried by the vestibular nerve. Information from the cochlea is carried by the cochlear nerve. Then cochlear nerve and vestibular nerve join together to form auditory nerve. Auditory nerve is a 8th cranial nerve. Please remember this. And then auditory nerve will go to the cerebellum where your body will be balanced, जहाँ पे आपका बॉडी बैलेंस होगा, एंड इट विल ऑल्सो गो टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब, जहाँ पे साउंड्स विल बी एनालाइज्ड। Congratulations student, we have successfully completed this topic. I hope you have really enjoyed this lecture. I request you to please like, share and subscribe our channel, and please comment below for any suggestion or the feedback or whatever the data you want in future from us. Thank you so much.